So we'll begin with the Indus Valley civilization. ठीक है? So Indus Valley civilization is considered to be the world's first phase of urbanization. ठीक है? That too in the Indian subcontinent. And जो हमारा हड़प्पा है, that is one of the sites under Indus Valley civilization, and it is in fact the first site which was discovered. ठीक है, तो हड़प्पा was discovered in 1929, 1921 by दयाराम साहनी जी. ठीक है, so he was the one who had excavated it, whereas जो हमारा मोहनजोदारो site है, that was identified in 1922 by R.D. Banerjee. ठीक है, तो ये हो गया. एंड यू नीड टू नो दैट जो हरप्पन कल्चर है, it is divided into three phases. We have the early Harappan culture, then mature, and then the late Harappan culture as well. ठीक है, now the urban phase was prevalent in mature Harappan period and it began to decline afterwards. ठीक है, so this thing you need to remember. Now देखो यहाँ previous year questions दिए हैं, but I think we'll do them after we have completed the theory portion. ठीक है, so we'll come back to those questions after we have completed the theory. Now there were different phases of the Indus Valley civilization. First of all we had the early Harappan phase, उसके बाद में mature Harappan phase आया, और लास्ट में we had the late Harappan phase. ठीक है, अर्ली हरप्पन फेज में क्या हुआ था, देयर वाज एन एमर्जेंस ऑफ प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स लाइक अमरी, कोट डीजी, ये सब. ठीक है, देयर वाज अ यूज ऑफ मड ब्रिक्स, लिमिटेड टाउन प्लानिंग, then pastoral early village farming communities, pottery styles and regional trade. There were no standardized weights, seals or script. ठीक है, तो बिल्कुल ही मड का काम हो रहा था, मड ब्रिक्स वर बीइंग यूज्ड, टाउन प्लानिंग वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, बहुत ही वेरी लो अमाउंट ऑफ अर्बनाइजेशन वाज डन. ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोटो अर्बन, दैट इज समथिंग लाइक टाउन्स. ठीक है, दोज वर फॉर्म्ड. एग्जाम्पल्स है अमरी और कोट टीजी. मच्योर हड़प्पन फेज में दिस वाज द अर्बन पीक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो मेजर साइट्स वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा. ठीक है, there was a lot of advanced town planning which was done in this time period, and then drainage systems भी अच्छे से थे, baked bricks were being used for making houses, then standardized weights were being used, seals को use कर रहे थे, script को अच्छे से use किया, extensive internal and overseas trade was also carried out. ठीक है, फिर cultural and administrative uniformity was ensured across all the regions. ठीक है, देन वी एट द लेट हड़प्पन फेज. यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, एंड देयर वाज अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन एज वेल. देयर वाज डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग. ठीक है, देयर वाज अ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड वायलेंस, और इट इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन एज वेल. ठीक है, तो वही डिसअपियरेंस ऑफ सील, स्क्रिप्ट, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, डी अर्बनाइजेशन एंड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन भी हुआ था इस टाइम पे, है ना. नाउ वी लुक एट द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, अभी ये जो लेट हड़प्पन फेज में ये जो भी चीज़ें हो रही थी ना, देयर इज़ नो specific reason as to why this was happening, so there are various speculations regarding this, कि क्या maybe there was a big flood which caused the decline of the Indus Valley civilization, or maybe it could have been some either climate change or कोई इन्वेजन किया होगा बाहर से. ठीक है, सो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि क्यों हुआ डिक्लाइन. ठीक है, now what you need to know is the general timeline of the Harappan period, Indus Valley civilization period. So इसको आप you can assume it to be from इसको ले लो, हाँ, 2500 BC से लेके 1000 BC तक you can assume it to be there. ठीक है, इतना assume कर लो, because the exact timeline is, first of all, it is not known,
एंड द टाइमलाइंस इन एवरी बुक विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो कुछ भी जनरल टाइमलाइन यू शुड बी नोइंग कि इतने रेंज में तो रहेगा एटलीस्ट, है ना, दैट मच शुड डू। एंड दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, कोई क्वेश्चन आया तो यू कैन, मतलब अंदाजन लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देख लेते हैं उसका, है ना। सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में वी हैव द चेनाब रिवर, मांडा चेनाब रिवर एंड सेटलमेंट्स, then Shortugai, that is Afghanistan, is also present, so it was a trading outpost, ठीक है। southern most we have Daimabad, है ना। सो मांदा वॉज नियर चेनाब रीजन, चेनाब रिवर, और शोरतुगाई वॉज नियर अफगानिस्तान, ठीक है। सो दीज आर द टू साइड्स, नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स। सदर्न मोस्ट साइड इज दैमाबाद इन महाराष्ट्र, है ना। ये हमने वी हैड लर्न दिस कि दम टूट जाता है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ईस्टर्न मोस्ट वी हैव आलमगीरपुर, ये गंगा यमुना दोआब पे है। वेस्टर्न मोस्ट विल बी सुक्त चिंदौर, सुक्त चिंदौर इज ऑन दश्त रिवर, ठीक है। सो दिस वन ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे हम लोग हाउ विल यू रिमेंबर मांडा, देखो मांडा हमें लर्न करना है, मांडा एंड शोरतुगाई, ठीक है। सो देखो मांडा तो लर्न हो जाएगा, नहीं शोरतुगाई आराम से लर्न हो जाएगा, अफगानिस्तान में है ना। दिस इज़ अ वेरी कॉमनली नोन प्लेस, ठीक है। मांडा लर्न करना है तो चेनाब, चेनाब है वहाँ पे, है ना। सो चेनाब से इसको ऐसे लर्न कर लो कि मन नहीं है इसके ऊपर जाने का। जो इंडस वाली सिविलाइजेशन वाले थे ना, दे डिड नॉट फील लाइक गोइंग बियॉन्ड मंदा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट साइट अलॉन्ग विथ शुरतुगाई, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सदर्न मोस्ट दायमाबाद है, ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर। तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, एक तो गंगा यमुना तो आप यू कैन easily remember because what happened was Indus Valley civilization once it ended, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड दैट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये गंगा यमुना दोआब रीजन में, है ना। देन आलमगीरपुर, कैसे करेंगे लिंक इंडस वैली से, आर्म्स से करो, आर्म्स। So Indus Valley civilization के people they were quite rich, so they used to give alms to the beggars, ठीक है। So that way you can remember this. Then westernmost है Sukta Jindor. So Sukta को आप link, this was near Dasht river, and westernmost you can link it with Sindh. Sindh is in Pakistan, है ना, S से start होता है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑन द वेस्ट। सो एस से सिंध, एस से सुक्ता चिंदौर, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी लुक एट द टाउन प्लानिंग। सो सिटी का डिविजन वॉज डन इनटू लोअर टाउन, दैट इज़ द रेजिडेंशियल एरियाज, एंड द सिटाडेल विच इज़ द हायर ग्राउंड, ठीक है। द सिटीज़ वर ऑफ अ ग्रिड पैटर्न, यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, ठीक है। और जो स्टैंडर्डाइज्ड बिग ब्रिक रेशियो था इट वाज ऑफ 1:2:4 का, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, 1:2:4 का रेशियो है, एंड बेक्ड ब्रिक्स वर यूज, ठीक है। ये सब बताइए। हाउसिंग 1 or 2 stories हाई, रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, ठीक है, एंड नो विंडोज वर देयर इन द वॉल्स। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि विंडोज नहीं होते थे उस टाइम पे। प्राइवेट सैनिटेशन वॉज यूज एंड देयर वॉज अ यूज ऑफ स्टोन एंड वुड एज वेल, ठीक है। देन पब्लिक बाथ वॉज अ कॉमन फीचर, एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। फिर ड्रेनेज का क्या है, देयर वॉज एडवांस्ड कवर्ड ड्रेनेज linked to cesspits, ठीक है, and houses were built along them just like how we have today,
हमारे घर के 2-3 घरों का एक गटर या एक घर का एक गटर ऐसे हो रहता है ना। सो समथिंग लाइक दैट से स्पिट्स वर देयर एंड देयर वाज कवर्ड ड्रेनेज। फिर ग्रेनरीज थे, दे वर ऑन एन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, विद एयर डक्ट्स फॉर वेंटिलेशन। एडवांस्ड वाटर सिस्टम था, सो वी दे हैड वाटर रिजर्वायर एट धोलावीरा, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो एटसेट्रा, ठीक है। सो ये हो गया टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट वी लुक एट सोसाइटी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसको देखते हैं। सोसाइटी में देयर वाज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन व्हिच वाज देयर। सो वहाँ पे हाउस के साइजेस का वेरिएशन था। देयर वर मॉडरेट हाउसेस, देन देयर वाज नॉन रिजिड हायरार्की, फिर पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल सोसाइटी वाज आल्सो प्रेजेंट, देन देयर वाज अ डिपिक्शन ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल फिगर्स, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इवन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था इनका? देयर वाज नो क्लियर एविडेंस ऑफ किंग्स, रॉयल टूम्स और स्टैंडिंग आर्मीज, इन सब का कोई एविडेंस हैज नॉट बीन फाउंड। Thus, it suggests that maybe they are decentralized governance. ठीक है। फिर we look at women's position. So, women के there have been various terracotta figurines which have been found. ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल है ना, which was made of bronze and this was found in मोहनजोदारो, ठीक है। सो इट जस्ट suggests that women had social visibility, ठीक है। फिर बरियल प्रैक्टिसेस देखते हैं। Burial के लिए they used to you have fire altars and these primarily burials were dominant, ठीक है। तो graves के अंदर they used to put various goods like pottery, beads, ornaments, grave goods, etc. ठीक है। And there was relative social equality even though there were some signs of social stratification, ठीक है। नेक्स्ट है cosmetics. There was some awareness of fashion as well, and cinnabar was used as a face paint or lipstick, ठीक है। सो cinnabar आप याद रखना, कैसे लर्न करेंगे? cinnabar, बार ऑफ सोप से लर्न कर लो, बार ऑफ सोप। सो बार ऑफ सोप इज यूज ऑन फेस, तो उससे cinnabar, ठीक है। नेक्स्ट रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम्स। Religion was symbolic and it was largely secular, ठीक है। लार्जली सेक्युलर, religion was non-dominant. There were no temples, worship inferred from figurines primarily, ठीक है। तो डेटीज कौन थे? वही मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा, ये सब लोग डेटीज होते थे उस टाइम के, है ना। रिलीजियस प्रैक्टिस था, नेचर वर्शिप वॉज प्रेवलेंट, ट्री वर्शिप वॉज प्रेवलेंट, पीपल स्पेशली, है ना। हाउ विल यू रिमेंबर कि पीपल को करते थे? देखो ऐसे, पीपल के ट्रीज, पीपल ट्री के जो लीव्स हैं दे लुक लाइक ऐसे राउंड शेप के होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो उससे लर्न कर लो कि वर्शिप का ओ एंड पीपल का जो लीफ है। देन एनिमल वर्शिप वाज डन, यूनिकॉर्न, एलिफेंट, राइनोसरस, इन सब का। देन योनी फैलिक वर्शिप वाज डन, फायर ऑल्टर्स एंड फायर रिचुअल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो नेचर का प्राइमरीली वर्शिप करते थे, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब लोगों का, इवन फायर फॉर दैट मैटर, ठीक है। देन आफ्टर लाइफ के बिलीव्स भी थे, बिकॉज दे हैव सीन दैट जो बरियल्स थे दे वर प्राइमरीली विद अ लॉट ऑफ आइटम्स विद इन देम। तो जो बरियल साइट्स है उनके अंदर बहुत सारे पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा वर फाउंड, which implies that they believed that these people could use them after death, ठीक है। तो इसलिए ऐसे भर के रख देते थे सामान अंदर, है ना। देन इकोनॉमी का देखते हैं, एग्रीकल्चरल बेस। एग्रीकल्चरल बेस क्या था? मिक्स्ड फार्मिंग वाज डन प्राइमरली बैक देन, ठीक है। एंड wheat, barley, cotton, all of these along with mustard, sesame, rice, all of these were grown and some plow marks have been found in Kalibangan, ठीक है। कॉटन वगैरह कहाँ पे? बार्ली, कॉटन कहाँ पे ग्रो कर रहा था?
मेहरगढ़, हड़प्पा बेल्ट, यहाँ सब जगहों पे, ठीक है। और मस्टर्ड, सेसमे, राइस कहाँ पे था, लोथल, रंगपुर, यहाँ इन सब जगहों पे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखो, मिक्स्ड फार्मिंग है, वीट, बार्ली, कॉटन को कर रहे हैं। मेहरगढ़, हड़प्पा बेल्ट में देयर वाज मिक्स्ड फार्मिंग बीइंग डन। फिर राइस का कहाँ पे मिला है, लोथल एज वेल एज रंगपुर। तो लो, थाली में राइस डाल लो, में राइस डाल लो, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और रंगपुर मतलब कलर्ड राइस, जैसे ब्लैक कलर के राइस आते हैं आजकल, है ना, तो रंगपुर से कलर्ड राइस यू कैन रिमेंबर, ठीक है। देन प्लो मार्क्स वर ऑल्सो प्रेजेंट कालीबंगन में। फिर दे ऑल्सो हैड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, तो जेबू कैटल, बफलो, शीप, goat, all of these were domesticated. Elephant was known, है ना, back then. Apart from that, ivory was also used, ठीक है। तो domestication as such was uncertain, but पता नहीं है। Horses were largely absent, ठीक है। Horse को नहीं domesticate करा इतना, but there is a very high possibility that they had domesticated cattle, buffalo, sheep, goat. एलिफेंट भी पता था उनको, पर इसका डोमेस्टिकेशन का नहीं पता। देन दे डिबेटेड, हाँ, हॉर्स जो था, हॉर्स वॉज मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज नॉट डोमेस्टिकेटेड एंड remains of these horses have been found at Sukotada. So it is under debate के इनको करा था कि नहीं domesticate, and there was a question on this as well, ठीक है। तो सुरकोटडा, how will you remember कि this was related to horse? तडा, if you might have heard horse galloping, तो उसका एक आवाज़ आती है ना उसके शूज़ से, ठीक है, तो उसको आप यू कैन लिंक इट विद तड़ा, ठीक है। गैलपिंग हॉर्स, हॉर्स की आवाज़ से यू कैन लिंक तड़ा, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर नाउ विल बी लुकिंग एट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो प्राइमरली बार्टर सिस्टम वॉज बीइंग डन एंड ट्रेड वॉज विद मेसोपोटामिया, ओमान एंड bahrain, ठीक है, मकरान कोस्ट पे। सो वील ट्राई टू रिमेंबर दिस। ट्रेड एंड कॉमर्स में बार्टर सिस्टम वॉज बीइंग फॉलोड, है ना। ट्रेड वॉज डन विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इज इन वही टर्की, प्रेजेंट डे टर्की, है ना। देन ओमान से भी कर रहे थे और बहरीन से भी, दिलमुन एंड मगान। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल। क्या क्या है, मगान, दिलमुन, है ना, और मकरान कोस्ट तो है ही, ठीक है। ये याद होने चाहिए। देन वी लुक एट वेट्स एंड मेजर्स। सो दे वर हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, बाइनरी, डेसिमल, क्यूबिकल स्टोन वेट्स वर यूज्ड, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि काफ़ी स्टैंडर्डाइज डिसेंट सिस्टम वाज प्रेजेंट देयर। देन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलक कार्ट्स वर यूज्ड, बोट्स वर यूज्ड एट डॉक, बोट्स वर मतलब देवर एविडेंसेस ऑफ बोट्स एंड डॉकयार्ड एट लोथल, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग कि डॉकयार्ड प्रेजेंट था लोथल पे। डॉकयार्ड कहाँ क्या होता है, सम प्लेस वेयर शिप्स आर पार्क्ड, शिप्स और बोट्स, ठीक है। सो लोथल पे है डॉकयार्ड। ये लर्न कर लेते हैं, देखो, मगान, ओमान को क्या, मगान, सो दिस इज राइमिंग, है ना। फिर दिलमुन, बहरीन, एन एन से एंड हो रहे हैं, दिलमुन, बहरीन, ठीक है। बहरीन, बाहर रेन हो रही है तो हमारे को, हम आई लाइक मतलब ऐसे लर्न कर लो कि बाहर रेन हो रही है, घर के बाहर रेन हो रही है और ये दिल को अच्छा लग रहा है, द हार्ट इज़ लाइकिंग इट, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन ये हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल्स, तो दे आर नॉलेज ऑफ कॉटन एंड सिल्क एंड क्लॉथ विद फ्लावर डेकोरेशंस वर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉटन एंड वूल स्पिनिंग एज वेल, ठीक है। देन पोर्ट्स क्या क्या थे, देखो, पोर्ट्स में यू हैड सुख्ता जिंदौर, देन सोटका को, बलूचिस्तान,
ठीक है, सो दीज यू नीड टू रिमेंबर. लोथल तो सबको पता होगा. देन बालाकोट, बालाकोट वॉज ऑल्सो अ पोर्ट. ठीक है, दैट वॉज ऑन विदार रिवर. फिर अल्लाह दीनो इन पाकिस्तान. सोतका को ऑन शदिकोर रिवर बलूचिस्तान. एंड सुक्ता जिंदौर बलूचिस्तान ऑन दश्त रिवर. ठीक है, सो वील ट्राई टू लर्न दीज नाउ. तो कैसे कर सकते हैं? सुक्का जिंदौर वी नो कि इट इज़ इन बलूचिस्तान, इट इज़ इन पाकिस्तान, है ना. एंड यहाँ पे एक पोर्ट मिला है. ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि जिंदौर से आप जनरेटर लर्न कर सकते हो. जनरेटर, जिंदौर. जनरेटर कहाँ पे होता है? इन शिप्स. बिग शिप्स हैव जनरेटर्स. ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. फिर सोतका को, सोतका को किस पे है? शादीकोर रिवर पे है. अच्छा, सुतका जिंदौर इज ऑन दश्त रिवर. तो हाँ, जनरेटर से दे यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड देन यू कैन गो डैशिंग. तो वो जो शिप है वो डैशिंगली फास्ट इट कैन गो. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. दश्त रिवर. सोतका को, तो शादी कोर से वी हैव टू लिंक. तो सोतका को और शादी को. ठीक है, सो दे आर कॉमन ऑन बोथ साइड्स, है ना. तो राइम हो रहे हैं, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. फिर है अल्लाह दीनो. सो अल्लाह क्या दे रहा है, ऐसे करके रिमेंबर कर लो. को कैसे लर्न करेंगे हम लोग कि इट इज़ अ पोर्ट. कोल्ड, कोल्ड वाटर एट अ पोर्ट से, है ना. को से कोल्ड हो जाएगा. को वाटर इन द पोर्ट. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. फिर अल्लाह दीनो, अल्लाह क्या देता है ना, उससे लर्न कर लेंगे. अल्लाह गिव्स समथिंग, तो कैसे देंगे वो? वाया पोर्ट्स. ठीक है, कुछ बहुत सारा सामान भेजना होगा अगर गॉड को, दे विल सेंड इट वाया पोर्ट्स. ऐसे लर्न कर लो. ठीक है, लोथल का पता है. बालाकोट इज अगेन ऑन विदार रिवर. ठीक है, विद्या, ऐसे लर्न कर लो. बालाकोट, बालाकोट में बाल है, बाल है ना. बाल किसके ऊपर ऊपर होते हैं? ऑन द हेड. ठीक है, और हेड से क्या रिलेटेड है? विद्या. विद्या इज नॉलेज. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर विदार रिवर बालाकोट. ठीक है, ये हो गया अभी. ठीक है, now we'll look at the important Indus Valley civilization sites. First of all, we have Mohenjo-daro. ठीक है, it is on the bank of the river Indus and सिंध पाकिस्तान में अभी. एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ पे है मोहनजोदारो. ठीक है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माउंट ऑफ डेड. ठीक है, तो उसका लिटरल मीनिंग मोहनजोदारो का है माउंट ऑफ डेड. ड्यू टू मल्टीपल सुपरइम्पोज्ड सिटी लेयर्स एंड ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स इंडिकेटिंग अ सडन डिक्लाइन. यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इस साइट के. देयर वॉज अ ग्रेट बाथ. ठीक है, मोहनजोदारो पे जहाँ रिचुअल बेथिंग होती थी. इट इज़ वाटर प्रूफ्ड विद बिटुमेन एंड देयर इज़ एन एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, पूरा ग्रिड स्ट्रक्चर में. देन देयर इज़ ग्रेट ग्रैनरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, है ना. ग्रैनरी इज़ वेयर यू कीप ग्रेन्स. ठीक है, वो अपर सिटिल पोर्शन में रखते थे. सील ऑफ पशुपति, दैट इज़ प्रोटोशिवा वॉज ऑल्सो फाउंड हियर. ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहाँ पे मिली थी और बियर्डेड मैन का स्टैचू. ठीक है, ये सब यहाँ पे मिला है. सो मेजर थिंग्स विच वी नो, जो एनसीईआरटीज़ में फ़ोटोज़ होती है ना, एक तो पशुपति, प्रोटोशिवा की फ़ोटो रहती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल की एंड बियर्डेड मैन की. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर फाउंडेड हियर, है ना, जो मेन अच्छी वाली थी. बाकी जो क्ले फिगर्स जो विच वर नॉट एज नाइसली मेड, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये सब कहाँ मिला था? हड़प्पा में. जो बहुत इंट्रिकेट अच्छी वाली जो यू हैड आइदर द आइडल और स्टैचू, ये सब दे वर फाउंड इन मोहनजोदारो. ठीक है, 2 मेसोपोटामियन सील्स वर ऑल्सो फाउंड विच इंडिकेटेड कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था टर्की के साथ में. देन saddle corns for grinding cereals were found here.
and it was a cotton textile hub. ठीक है, and it was a better preserved site than Harappa. ठीक है, this you need to know. नेक्स्ट है Harappa, which is on the bank of Ravi river in Punjab, है ना, in Punjab of Pakistan. ठीक है, so दिस इज द फर्स्ट साइट. यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे रावी. ये रहा हरप्पा, रावी के ऊपर है. This is the first site to be discovered. There were 6 granaries in a row with air ducts and workmen's quarters. फर्स्ट साइट है 1921 में दयाराम सानी ने फाइंड किया था. वर्जिन गॉडेस का सील था यहाँ पे. देन स्टोन सिम्बल्स ऑफ लिंगम योनि, पेंटेड पॉटरी, clay figures of mother goddess. ठीक है, so these were not as intricate as the ones found in Mohenjo-daro. There was evidence of coffin burial as well. Symmetry etch culture भी यहाँ पे था. ठीक है, तो हरप्पन symmetry culture was had originated here. ठीक है, तो etch culture ऐसे लर्न कर लेना. Destroyed site by brick robbers. So what had happened was वहाँ पे काफ़ी सारे bricks थे due to the earlier city present, है ना. In 1920s or so, people thought कि ऐसे कहीं ईंट पड़े हैं, so they just took them away, है ना, ईंट उठा उठा के ले गए, so the site got destroyed. ठीक है, नेक्स्ट है धोलावीरा. धोलावीरा इज इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात. ठीक है, दिस इज द ओनली हरप्पन सिटी विच इज डिवाइडेड इनटू 3 parts: सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? ढोल, ढोल ऐसे दिखता है, उसके भी देर आर 3 parts, है ना. ये वाला फेस, देन लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन एंड दूसरा फेस, थर्ड फेस. ठीक है, ये हो गए. नाउ एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ पे. देयर वर अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स, चैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब. ठीक है, सो दीज वर एनेबलिंग सेटलमेंट इन स्पार्स रेनफॉल एरियाज. देन लार्ज हरप्पन साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन था यहाँ पे. Stone masonry was used instead of baked bricks, whereas हरप्पा में they were baked bricks used. यहाँ पे stones के घर थे, stone masonry was done. Then fortified settlement था. There was a large stadium with a complex structure and seating arrangement. How will you remember this? गुजरात में है ना धोलावीरा. गुजरात में we also have another stadium. अहमदाबाद में there is one big stadium, cricket stadium. ठीक है, so that way you can remember this. यहाँ पे प्रॉपर टाइप स्टेडियम भी था. नेक्स्ट देखते हैं लोथल. लोथल वॉज अगेन इन गुजरात. देयर वॉज एन एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड फाउंड हियर. डॉकयार्ड इज वेयर शिप्स पार्क, है ना, मतलब दिस इंडिकेटेड मैरीटाइम ट्रेड. एविडेंस ऑफ आइवरी स्केल विद remarkably precise small divisions and ivory weights were found here. ठीक है, तो आइवरी जो एलिफेंट का टस्क से मिलता है वो, दिस वॉज फाउंड इन लोथल. ठीक है, सो इट इंडिकेट्स दैट एलिफेंट्स वर ऑल्सो देयर, मे बी, है ना, एलिफेंट्स भी प्रेजेंट थे लोथल में. देन फायर ऑल्ट, इसको लर्न कैसे करेंगे आप? इमेजिन करिए कि आइवरी का ट्रेड हो रहा है ना. आइवरी इज़ अ वेरी प्रेशियस मटेरियल, है ना, उसका ट्रेड हो रहा है वाया डॉकयार्ड्स. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. There were various fire altars which were used for religious rites, where there is evidence of rice cultivation. ठीक है, राइस ग्रो करते थे. देन बीड मेकिंग सेंटर था ये. बीड मेकिंग, जस्ट इमेजिन कि बीड बना के दे वर trading it, exporting it abroad. Then copper dog and bird were found. So copper का एक dog और bird which were small figurines. ठीक है, so ये भी this was also found here. एंड अगेन इसको ऐसे लिंक कर लो कि कॉपर का जो डॉग और ये क्या बर्ड के फिगरीन्स दे वर एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स अब्रॉड. ठीक है, ऐसे लिटिल टॉयज वर मेड एंड दे वर एक्सपोर्टेड अब्रॉड बाय द डॉकयार्ड. Citadel was not fortified, while the entire settlement stood fortified with a massive brick wall. ठीक है,
तो citadel in this case was not fortified. Tidal port connected to साबरमती भोगावो रिवर सिस्टम. ठीक है, सो जो यहाँ पे डॉकयार्ड है वो बेसिकली इस पोर्ट पे बना है. जो साबरमती रिवर और भोगावो रिवर का रिवर सिस्टम है ना, साबरमती इज़ द मेन रिवर इन गुजरात, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन गुजरात. ठीक है, तो वहाँ पे दिस इज़ फाउंड. देयर इज़ अ tidal port connecting Sabarmati and Bhogavo river system. That is where Lothal is. A house made of bricks and drains of burnt bricks were also found here. ठीक है, ये लोथल हो गया. Next we are looking at Kalibangan. Kalibangan is on Ghaggar river of Rajasthan. The name was derived from Kali. So Kali means black and Bangan means bangle. ठीक है, तो यहाँ पे black color की terracotta bangles were excavated. That is why the name is given in such manner. Now will you remember this? देखो, ऐसे राजस्थान में you might have seen कि ladies का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें क्या क्या होता है. एक तो घाघरा टाइप का कुछ पहनते हैं नीचे, है ना, हाफ साड़ी टाइप. सो घाघरा से घाघर रिवर हो गया. एंड देन दे वेयर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन देयर आर्म्स. ठीक है, पूरा ऊपर तक दे वेयर बैंगल्स. ठीक है, तो उससे काली बंगन यू कैन रिमेंबर. देन इट showcases both early and mature Harappan culture. ठीक है, and fire altars were associated with ritual activity. World's earliest plowed field evidence was found here. This is important to remember कि world का earliest plowed field was found here, and earliest form of artificial irrigation was also seen here. So this is very important कि पूरे world का first plowed field was found here, है ना. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई लेडी है, उसने बहुत सारे बैंगल्स पहने हैं एंड शी हैज़ टेकन अ वो प्लाव, जो प्लाव करने के लिए यूज़ करते हैं ना फील्ड्स को, वो लेके शी इज़ प्लाइंग द फील्ड्स और फिर वो बैंगल्स से आवाज़ आ रही है. ठीक है, सो इफ़ यू इमेजिन दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस नाइसली. ठीक है, और प्लोड फील्ड है तो वहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन भी हुआ था. ठीक है, then structure of great bath was also found here. Even here a great bath was found. ठीक है, so do not get confused in case they ask कि great bath was found in मोहनजोदारो and उसके along कहाँ पे और मिला था. So the answer will be कालीबंगन. So ऐसे imagine करो बंगन बाथ. ठीक है, बंगन बाथ. Then no proper drainage system was present in the lower town, which highlighted regional differences. Then Citadel was a fortified parallelogram. It extended burial for ordinary person to earn burial था for a person from lower social strata, and earthen pot burial with precious material showed faith in life after death. ठीक है, तो अर्न पॉट्स में जो थोड़ा लोअर सोशल स्ट्रेटा के लोग थे उनको उसमें बरी करते थे. Pottery was not as well fired as that of Harappa. So Harappan pottery was better. So this is not as important. ठीक है, बस इसमें मेन थिंग ये प्लो वाला याद रखना है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लोड फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट रोपर. रोपर कहाँ पे? पंजाब में. दिस यू ऑलरेडी माइट बी नोइंग एंड दिस इज ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर. So buildings were made of stone and soil over here. Dogs were buried with humans. So this is important to remember कि कौन सी साइट थी जहाँ पे dogs were found buried with humans. So it was Roper. ठीक है, and they inscribed steatite seals with typical Indus pictographs और oval pit burials थे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर ये डॉग वाला कि डॉग और ह्यूमंस को साथ में बरी करा है. सो ऐसे इमेजिन करो कि किसी ह्यूमन का डॉग इज नो लॉन्गर देयर, तो दे आर क्राइंग, है ना, रो रहे हैं. एंड दे डिसाइडेड कि नहीं, व्हेन आई डाई बरी मी विद दिस डॉग ओनली. ठीक है, ऐसे करके यू कैन इमेजिन अ सीन. देन रो से रोपर हो जाएगा. फिर स्टीयरटाइट सील्स विद इंडस के पिक्टोग्राफ्स, है ना. पिक्टोग्राफ्स पार से, रो पार का पार, पार साउंड्स लाइक अ पिक्चर, है ना. पिक्चर से पिक्टोग्राफ. ठीक है, ये हो गया.
नाउ बनावली के बारे में देखते हैं। बनावली इज इन हिसार ऑफ हरियाणा। ठीक है, हिसार हरियाणा में बनावली करके है। सो ओवल शेप्ड सेटलमेंट था ये विद यूनिक रेडियल स्ट्रीट पैटर्न। सो अदर places they had a grid pattern, whereas in this case they had a radial pattern. And there was again evidence of plowed fields found here, and it yields the largest number of charred barley grains found at any IBC site. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, बनावली मतलब कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो हिसार जाके हम कुछ बना रहे हैं, ऐसे इमेजिन करिए। दिस हिसार इज़ अ हिली एरिया एज फार एज आई नो, है ना। तो वहाँ जाके वी आर कुकिंग समथिंग। ठीक है, तो कुकिंग से हमको लर्न हो जाएगा कुक क्या कर रहे हैं, बार्ली की ग्रेन्स को कुक कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस मच यू कैन रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू रिमेंबर द रेडियल स्ट्रीट पैटर्न। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि क्या बनाया है उन्होंने, ऐसे सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे उन्होंने, है ना, बनाए थे। एंड द सिटी वॉज बिल्ट अलॉन्ग दीज लाइन्स। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर बनावली, है ना, ये हो गया। उसके बाद वी हैव छानो दारो विच इज़ इन सिंध पाकिस्तान। So Chanudaro has no as such citadel present. There is an evidence of ink pot also there, है ना। There was an industrial town which was known for bead making, shell cutting, seal and weight manufacture. ठीक है, and artifacts of various carts with seated drivers were also present. तो ऐसे टॉयज टाइप की चीज़ें थी। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंक पॉट लर्न करना है। चानोदारो, चानोदारो कहाँ पे है? सिंध में। हाउ विल यू रिमेंबर इंक पॉट? तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि कोई इंक इंक से दे आर राइटिंग अ लेटर टू समवन। ठीक है, चानोदारो लर्न हो गया। नाउ इंडस्ट्रियल टाउन फॉर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, ये वही आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसे बीड्स और शेल्स किसी को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, वैसे लर्न कर सकते हैं। एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ कार्ट्स विद सीटेड ड्राइवर्स, तो टॉयज वगैरह भी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट राखी गढ़ी। सो राखी गढ़ी में क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हरप्पन साइट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट। यहाँ पे स्केलेटल DNA एनालिसिस वाज डन and it had the DNA which was analyzed had a distinct origin than the Iranian ancestry. So we were earlier under the impression कि हमारा जो Indian race, even the earlier Indus Valley civilization had comprised primarily of the Aryan race, है ना। Aryan race वहाँ से migrate होके आई होगी ईरान साइड से, Indo-Aryan race. But that skeletal DNA analysis में this was not found. A distinct race was found, मतलब it was distinct from the Aryan race. Now beads क्या यूज़ करे थे यहाँ पे? स्टीयरटाइट, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, शेल्स और ये सब चीज़ों के बीड्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अगेट, कार्नेलियन, ये सब के ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। देन ग्रेनरी मेड ऑफ mud bricks was found here, evidence of occupation during early and mature Harappa periods. Then animal के sacrificial pits lined with mud bricks and triangular circular fire altars were also found. ठीक है, so this indicated the presence of superstition. एनिमल का सैक्रिफाइस भी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस? यहाँ पे बस दो चीज़ें लर्न करनी है। यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द स्केलेटल DNA एनालिसिस एंड यू नीड टू रिमेंबर अबाउट एनिमल सैक्रिफिशियल पिट्स। सो देखो, DNA किसका सेम होता है? सिबलिंग्स का सेम होता है ना। और सिबलिंग्स क्या, राखी वगैरह पहनते हैं, किसी को पहनाएंगे, है ना। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, और एनिमल सैक्रिफिशियल पिट्स में क्या रहेंगे? एनिमल्स रहेंगे, वही एनिमल्स को आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई अपने पेट्स को राखी पहना रहा है।
ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल। ठीक है, ये दोनों हो गया। नाउ वील मूव टू अमरी। अमरी इज इन सिंध पाकिस्तान। अभी इराकी गरी कहाँ पे, हिसार में ही है अगेन। ठीक है, और पहले एक और कौन सा था हिसार में, वी हैड बनावली विच वॉज इन हिसार। सो देर आर टू साइट्स इन हिसार हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट यू लुकिंग एट अमरी इन सिंध पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, देयर वर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस फाउंड। ठीक है, तो अमरी कहाँ पे, देखो अभी कहाँ पे है राइनोज आर फाउंड इन असम। असम इज इन नॉर्थ ईस्ट, वेयर एज अमरी इज इन साउथ वेस्ट में है। ये सिंध प्रोविंस इज इन साउथ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना। पाकिस्तान के भी सबसे नीचे रहेगा वो साउथ वेस्ट पोर्शन में। ठीक है, सो एकदम अपोजिट हो गया, यहाँ पे है एक और एक यहाँ पे है। दोनों जगह पे राइनोसोरस फाउंड। ठीक है, यहाँ आसाम में अभी मिलता है और यहाँ सिंध में पहले मिलता था। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, ए से आसाम, ए से अमरी। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वी हैव मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ, a new study was done wherein the age of the Mehergarh site was found to be around 8000 BC, no, 5200 BC instead of 8000 BC. So earlier we were under the impression कि क्या Indus Valley civilization was from कितना 2500, नहीं हमने यहाँ पे भी written the timeline somewhere ना, wait a second let me check। ये 2500 to 1000 BC लर्न किया था हमने, है ना। तो बट द मेहरगढ़ साइट वॉज फाउंड टू बी फ्रॉम 5200 BC। ठीक है, पहले लगा था कि 8000 BC का है, बट नहीं, इट इज़ फ्रॉम 5200 BC। ठीक है, देयर वॉज एन एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन प्रायर टू द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ कॉटन इज फाउंड फ्रॉम हियर। ठीक है, इन द ओल्ड वर्ल्ड। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि सबसे पहले कॉटन कहाँ पे मिला है, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस कि कॉटन सबसे पहले यहाँ मिला है। मेहर का मतलब होता है कि दया करना किसी पे, ऐसे कुछ वर्ड है ये, दया करना। ठीक है, सो हम लोग अगर किसी पे मेहर करते हैं, व्हेन वी दया करते हैं, देन वी डू चैरिटी एंड व्हाट डू वी डू इन चैरिटी, वी गिव अवे क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन के क्लोथ्स दे रहे हैं दूसरों को। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट, है ना। मेहरगढ़ में कॉटन वॉज फर्स्ट फाउंड। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन वॉज फाउंड एंड देयर इज कंटिन्यूस देयर इज एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन प्रायर टू हरप्पन सिविलाइजेशन एज वेल। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी देयर वर सम पीपल लिविंग हियर। ठीक है, नाउ वील मूव टू सुरकोटडा। सो वी हैड ऑलरेडी लर्न दिस अबव कि टडा से कैसे लर्न किया था, टडा साउंड्स लाइक अ हॉर्स गैलोपिंग, है ना, वैसे वी हैड रिमेंबर्ड इट। ठीक है, सो यहाँ पे देयर वर फर्स्ट एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स फाउंड एंड डॉग बोन्स वर ऑल्सो फाउंड हियर। ठीक है, सो एनिमल्स का काफ़ी मिला है यहाँ पे, है ना। सो दीज मे हैव बीन एविडेंसेस ऑफ domestication, but we are not very sure about that। ठीक है, now we have भिर in हरियाणा। सो भिर और हरियाणा राइम कर रहे हैं, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, भिर हरियाणा। नाउ देयर इज अ रीसेंट साइट विच सजेस्ट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन वॉज नियरली 8000 years old। ठीक है, and it was earlier than the Egypt and Mesopotamian civilizations as well। ठीक है, so Bhir is a recent site and we were earlier under the impression कि Indus Valley civilization may have started around 2500 BC or something like that, but नहीं, this site suggests that it was 8000 years old। ठीक है, it reinforces that Indus Valley civilization spread across a vast area including the घाघर हाकरा and हाकरा, जिसको सरस्वती रिवर बोलते हैं, है ना, घाघर रिवर को
देर इज दिस साइट reinforces the idea कि वहाँ पे भी this was there. Indus Valley civilization was across the entire region. ठीक है. सो what you need to remember is कि जो घाघर रिवर है, वो घाघर हाकरा रिवर वॉज एक्चुअली द सरस्वती रिवर. ठीक है, ये दोनों याद रखना आप, है ना. तो इसको ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि सरस्वती नाम का कोई लेडी इज वेयरिंग घाघरा. ठीक है. नाउ देयर वर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनिमल रिमेन्स व्हिच वर फाउंड हियर, एंड फाइंडिंग्स शो दैट देयर वाज अ कंटिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस हियर. ठीक है, तो पहले प्री हरप्पन था, फिर मच्योर हरप्पन एज था, एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और वीक मानसून, एंड देयर वाज नॉट अ सडन कोलैप्स व्हिच हैड हैपेंड. ठीक है, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था यहाँ के केस में, एंड द मोस्ट प्रोबेबल रीजन वाज दैट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो इसमें यू नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइट की वजह से द टाइम लाइन हैज़ चेंज. तो पहले लगता था 2500 BC से, अभी लगता है कि 5000 BC 6000 BC से शुरू हो चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, एंड इट कुड हैव बीन अर्लियर दैन द इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एज वेल. ठीक है, सो इसको कैसे लर्न करेंगे कि भूतकाल, भेराना से भूतकाल लर्न कर सकते हैं. भूतकाल मतलब पास्ट. ठीक है, सो इट वॉज अर्लियर, इसका जो पास्ट है इट वॉज अर्लियर दैन इवन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद घाघर और हाकरा रिवर, वो बस वैसे ही है. तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस साइट, बट ये ओवरऑल एनालिसिस है कि यहाँ पूरे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैव बीन देयर. ठीक है, नेक्स्ट है भावलपुर. नाउ भावलपुर इज़ इन पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. वहाँ पे भी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ इन उनका पंजाब वाला एरिया में कहीं पे है. सो दिस वॉज फाउंड अलोंग द एंशियंट घाघर हाकर रिवर चैनल इन चोलिस्तान रीजन. अच्छा, चोलिस्तान में है. दिस इज़ इन चोलिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान. Almost 400 sites were found, and Ganveriwal was a major city which was found here. ठीक है, and it shows all phases of Indus Valley civilization. That is the mature state, earlier state, and the later state as well. ठीक है, so what you need to remember here from here is this thing कि घाघर हाकरा रिवर का जो रिवर बेसिन है वहाँ पे मिला है ये भावलपुर. ठीक है, एंड भावलपुर चोलिस्तान लर्न करना है, चोलिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड घाघर हाकर रिवर चैनल. तो घाघर हाकर रिवर किससे रिलेटेड है? सरस्वती रिवर. सरस्वती रिवर, इफ़ यू माइट हैव बीन नोइंग, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेक्रेड रिवर फॉर इंडिया, है ना. ठीक है, तो उससे आप इमेजिन कर लो कि ये सेक्रेड रिवर थोड़ा सा पाकिस्तान में भी फ्लो होता था. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. Next, we'll be looking at the art and culture of the Indus Valley civilization. First of all, we'll look at seals. ठीक है, seals में क्या है? Material which was used for making seals were steatite mostly, फिर agate, chert, faience, copper. All of these materials were used for making seals. ठीक है, इनका shape क्या था? It was either square or rectangular, and motifs which were used were animals and other symbols. ठीक है, स्क्रिप्ट क्या थी यहाँ पे जो यूज़ होती थी? इट वॉज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच वॉज प्राइमरली यूज्ड, है ना. एंड बॉस्ट्रोफिडॉन मेथड वॉज यूज टू राइट द स्क्रिप्ट. मतलब कि वैसे हम नॉर्मली क्या ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बट दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, इट वॉज रिटन एज वेल एज रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन मेथड. ठीक है, उर्दू वगैरह में भी द सेम थिंग हैपन्स, है ना. Do remember the name of the method, that is boustrophedon. ठीक है, so script हो गया. then पशुपति seal was also found here, है ना. प्रोटोशिवा या महायोगी इस पे बने होते थे. this was primarily found in मोहनजोदारो,
इसमें एक ह्यूमन फिगर वॉज, मतलब ये जो सील है इसके ऊपर एक ह्यूमन फिगर वॉज सीटेड cross-legged manner, in a cross-legged manner, and elephant and tiger were on the right side of this person, or rhinoceros or buffalo were present on the left side, and there were two antelopes also present below the seat. Okay, so you need to remember the animals which were present on the Pashupati seal. क्या क्या है? एलिफेंट और टाइगर है राइट साइड पे, राइनोसोरस और बफलो है, देखो दोनों थोड़ा सिमिलर है ना, राइनोसोरस का भी हॉर्न होता है, बफलो का भी हॉर्न होता है, ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। और एलिफेंट और टाइगर आर, हमारे कंट्री में देर आर एलिफेंट रिजर्व्स एज वेल एज टाइगर रिजर्व्स, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस पोर्शन, ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर दो एंटीलोप्स दैट इज डियर टाइप का कुछ भी, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सील, ठीक है। दिस वॉज द पशुपति सील, प्रोटो शिवास भी बोलते हैं या महायोगी भी बोलते हैं इसको। देन यू हैव द यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील में क्या होगा? वन हॉर्न्ड mythical animal था, which was in profile before an altar-like object, ठीक है, and this reflected the rich symbolic and totemic traditions. Totemic का, let me just check the meaning of this word. Totemic. Totemic means relating to a totem, कुछ भी sacred symbol, हाँ. So totemic means they had a lot of sacred symbols as well. ठीक है, so this thing you need to remember कि यूनिकॉर्न सील भी मिला था वहाँ पे, है ना, मिथिकल एनिमल था कुछ, वन हॉर्न मिथिकल एनिमल, एंड इट वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑल्टर लाइक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पॉटरी, ठीक है, इसको कैसे लर्न करोगे? बूस्ट्रोफिडॉन को ऐसे आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, तो वो बोलते हैं कि बस मेरे को और नहीं पढ़ना इंग्लिश, बस नहीं और नहीं पढ़ना, इंस्टेड दे स्टार्ट रीडिंग सम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब विच कैन बी रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर बस से बूस्ट्रोफिडोन। नाउ पॉटरी में इट इज़ कैरेक्टराइज बाय व्हील मेड वेयर्स and they are generally made up of red clay with black designs, thus including plainware, rare polychrome pottery, perforated vessels which is used for straining liquids and other household purposes. Pots were painted in various colors and they were decorated with geometric designs and designs of men as well, people, ठीक है। तो व्हील मेड पॉटरी थी, व्हील के ऊपर बनाते थे, एज इट इज़ बीइंग डन नाउअडेज एज वेल, एंड जनरली रेड क्ले का था, या रेड क्ले along with black designs. Do not confuse this with black and red pottery. Black and red pottery was also found in the Chalcolithic period, ठीक है, Chalcolithic period में black and red pottery along with ochre colored pottery that was also found, ठीक है, so do not confuse it with this. यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे रेड क्ले था विद ब्लैक डिज़ाइंस, ठीक है, और बस इतना है। परफोरेटेड वेसल्स वर ऑल्सो फाउंड, ऐसे होल्स होते थे वेसल के ऊपर, ठीक है, एंड पॉलीक्रोम पॉटरी दैट इज हैविंग डिफरेंट कलर्स, दैट वाज आल्सो फाउंड देयर। देन टेराकोटा वाज यूज्ड, टेराकोटा मतलब फायर बेक्ड क्ले, है ना, दिस वाज आल्सो फाउंड हियर, was found at sites of Gujarat and Kalibangan, ठीक है, and it was handmade using the pinching method, ठीक है, pinch कर करके it was made, ठीक है, गुजरात, कालीबंगन, यहाँ सब जगहों पे टेराकोटा was found। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि बैंगल्स पहन के कोई लेडी टेराकोटा की यूटेंसिल्स बना रही है, तो शी इज़ यूजिंग द पिंचिंग मेथड टू मेक दीज जो भी टेराकोटा फिगरीन्स, ठीक है। Now we'll move to the sculptures. Next sculptures में we had the dancing girl. So it was a bronze figurine from Mohenjo-daro
which and it is considered to be world's oldest bronze sculpture. It was made using the lost wax techniques जिसको सर पर्ड्यू भी बोलते हैं ना. This you might be knowing. The figurine was in a tribanga dancing posture with minimal clothing and a very confident posture. ठीक है. It shows the advanced Harappan bronze casting skill. उसके बाद bearded priest करके भी एक मिला था. That was also found in Mohenjo-daro. It was made of steatite. और उसके फीचर्स क्या थे? There was a trefoil patterned shawl which that bearded priest was wearing, and he had half closed eyes. ठीक है. Then male torso भी मिला था. This was found in Harappa. So material which was used for this was sandstone, red sandstone. It was a well proportioned body with socket holes in the neck and shoulders for the attachment of head and arms. ठीक है. So this male torso was found in Harappa. Then you have mother goddess. Mother goddess भी कहाँ पे? हरप्पा में मिला है as far as I know. Material was baked clay, and it was in fact widespread over multiple sites. So it is not only Harappa but different sites. And this was a female figurine and it counted as a toy or something. ठीक है, because it was very small. Next we'll look at beads and ornaments. So materials which were used for making these were carnelian, jasper, lapis lazuli, agate, shell, fanes, gold, silver, copper. ठीक है, all of these materials were being used back then to make ornaments. ठीक है, तो गोल्ड को सिल्वर कॉपर भी यूज़ कर रहे थे. कॉपर तो ठीक है, चालकुलेट हट गया तो ठीक है. सो गोल्ड एंड सिल्वर वॉज यूज्ड. देन शेल, अगेट, फेंस, है ना, लापिस lazuli, jasper and carnelian were used. टाइप्स क्या थे? दे वर बीड्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, इयरिंग्स, ये सब चीज़ें थी. एंड जो गर्डल्स, इयरिंग्स और एंकलेट्स थे दे वर बीइंग worn ओनली बाय वुमेन. ठीक है, वेयर एज ये नेकलेस वगैरह इवन मेन मे हैव बीन वेयरिंग दोज. ठीक है. तो गर्डल क्या होता है? जस्ट लेट मी चेक व्हाट गर्डल मीन्स. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ worn अराउंड द वेस्ट. ठीक है, कोई वेस्ट के अराउंड इफ़ यू आर वेयरिंग सम ornament that is known as a girdle. How will you remember it? Girth of the body के around, that is the waist के around someone is wearing it. ठीक है. Now materials which were used were, देखो, शेल यूज़ करते थे, है ना. शेल कहाँ कहाँ पे मिला है? नागेश्वर एंड बालाकोट में. ठीक है. सो आप ऐसे इमेजिन करो कि बालाकोट मीन्स हेयर. तो आप ऐसे इमेजिन करो शेल वाले क्लिप्स मिले उनको. ठीक है, बाल में लगाने के लिए. ठीक है. और नागेश्वर से देखो, नागेश्वर मतलब स्नेक और स्नेल्स के ऊपर होता है शेल. ठीक है, तो ऐसे लिंक कर लो. स्नेल्स के ऊपर शेल होता है. ठीक है. देन लापिस लाजुली वॉज फाउंड इन शुर्तगाई. सो शुर्तगाई इज इन अफगानिस्तान. ठीक है. सो लापिस lazuli इज अ ब्लू कलर्ड स्टोन. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है and it is used as a semi precious stone. ठीक है. तो this is blue in color, lapis lazuli, blue metamorphic stone. ठीक है, शुर्तगाई अफगानिस्तान में. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? अफगानिस्तान साइड में इट इज़ अबव द मतलब वो हिमालयन रीजन के भी इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर ही है ना. वहाँ पे इट इज़ वेरी कोल्ड. तो ठंडी की वजह से सब कुछ ब्लू पड़ जाता है. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर लापिस lazuli शुर्तगाई अफगानिस्तान. नेक्स्ट है कार्नेलियन. कार्नेलियन वॉज फाउंड प्राइमरली इन लोथल, है ना. कार्नेलियन का लेट मी चेक व्हाट इट लुक्स लाइक. सो कार्नेलियन इज अ रेड कलर्ड स्टोन. ठीक है. बस ये पता होना चाहिए रेड कलर रहता है.
Hmm. Wait a second. Let me just check. ठीक है, क्वार्ट्स है बेसिकली, थोड़ा क्रिस्टल टाइप का भी रहेगा, रेड कलर्ड। लोथल में, लोथल इज इन गुजरात। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? ये जो रेड कलर्ड स्टोन है गुजरात में देर इज, सिंस इट इज क्लोजर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, तो रेड हो जाता है, हॉट, रेड हॉट हो जाता है वहाँ पे वेदर, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और फिर ऐसे लर्न कर लो कि लोथल से वहाँ पे डॉकयार्ड था, सो डॉकयार्ड से दे आर एक्सपोर्टिंग दिस ब्यूटिफुल ये रेड कलर्ड सेमी प्रेशियस स्टोन। ठीक है, देन स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट वाज फर्स्ट फाउंड, फर्स्ट तो नहीं मतलब प्राइमरली फाउंड फ्रॉम साउथ राजस्थान, है ना। स्टीयरटाइट मैं लिख देती हूँ, स्टीयरटाइट इज अ टैल्कम रॉक है ये, है ना। टैल्कम पाउडर जिससे बनता है ना, टैल्कम सॉफ्ट रॉक होता है ये, ठीक है, साउथ राजस्थान में मिलता है, सो यू कैन लर्न इन दिस इन दिस मैनर। राजस्थान में देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड, सैंड किससे बनता है, ऐसे आप इमेजिन करो कि वो टैल्कम पाउडर जैसे टैल्कम रॉक्स से बन जाता है, ठीक है। देन यू हैड कॉपर, कॉपर वो फाउंड इन राजस्थान एंड ओमान, इसको ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। नाउ वी लुक एट द मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द इंटायर क्रोनोलॉजी विच हैज़ बीन गिवन कि कौन सी साइट किसने डिस्कवर करी थी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड गिवन अ रिपोर्ट ऑन अ हड़प्पन सील, ठीक है, ये हमने वी हैड ऑलरेडी रेड अबाउट दिस। फिर दयाराम सानी वाज द पर्सन हु हैड बिगन एक्सकवेशन एट हड़प्पा इन 1921। 1922 में मोहनजोदारो का excavation was being done by Banerjee, R.N. Banerjee. ठीक है, so we had read that above. Then 1946, that is 1 year before independence, R.E.M. Wheeler ने excavate करा हड़प्पा। How will you remember this? देखो 1947 में चले गए थे वो लोग ब्रिटिशर्स, है ना, सो वो व्हीकल्स तैयार कर रहे थे अपने कि किससे जाएंगे, सो व्हीलर, व्हीकल्स हैव व्हील, तो व्हीलर उससे यू कैन लिंक इट एंड रिमेंबर इट दैट वे, ठीक है। देन देयर वाज एस आर राव, एस आर राव ही हैड बिगन एक्सकवेशंस एट लोथल, है ना। इनको कैसे, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो हमें पता है जो सरनेम रॉय होता है, रॉय इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इसका आप ऐसे यू कैन लर्न इट कि इसका अपोजिट क्या है, वेस्ट बंगाल के अपोजिट आता है गुजरात, और गुजरात में इट वाज राव हु हैड डन द एक्सकवेशंस, ठीक है, लोथल इज इन गुजरात, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है बीबी लाल एंड बी के थापर बिगैन एक्सकवेशन एट कालीबंगन, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो जो काली बैंगल्स थे, कालीबंगन वही बैंगल्स से आया ना, ब्लैक बैंगल्स से आया नाम, तो इसको ऐसे लिंक कर लो कि ब्लैक कलर के बैंगल्स के ऊपर रेड डिज़ाइंस बने थे, ठीक है, तो लाल से रेड डिज़ाइंस, है ना, बीबी लाल से रेड डिज़ाइंस, और बी के थापर, थापर मतलब कि थाप करके देखना, थंप करके देखना, मतलब दीज बैंगल्स वर अनब्रेकेबल, सो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बैंगल्स, ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेंबर इट, अनब्रेकेबल, ऐसे थप करके गिर जाए इवन देन दे वुड नॉट ब्रेक, ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ मेथड फॉर रिमेंबरिंग इट, बीबी लाल एंड बी के थापर कालीबंगन। नेक्स्ट वी हैव एम आर मुगल, ही हैड एक्सप्लोर्ड भावलपुर, है ना, भावलपुर वो पंजाब चोलिस्तान रीजन, पंजाब नहीं पाकिस्तान का चोलिस्तान रीजन में है, ठीक है। सो मुगल्स से आप लर्न कर लो, मुगल्स visit to they were in India, but since they had Islamic origin, so you can link it with Pakistan.
मुगल्स विद पाकिस्तान, एमआर मुगल, और भावलपुर इज़ अगेन इन पाकिस्तान, और भावलपुर कैसे लर्न करोगी, पाकिस्तान का राजस्थान है ना, दैट इज़ चोलिस्तान, ठीक है, दैट वाज भावलपुर। नेक्स्ट वी हैव जर्मन एंड इटालियन टीम which begins surface exploration at Mohenjo-daro. This had happened in 1980. 86 में अमेरिकन टीम had begun excavations at हड़प्पा। फिर धोलावीरा में आर एस बिष्ट वॉज द पर्सन हु हैड एक्सकवेटेड, ठीक है। तो धोलावीरा में हमें देयर वर 3 पोर्शंस इन द सिटी, ठीक है, नहीं तो अदर सिटीज देयर वर ओनली 2 डिविजन्स, एक तो लोअर था, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी एंड द अपर सिटाडेल, वेयरएज इन धोलावीरा देयर वर 3 पोर्शंस ऑफ अ सिटी, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, बिष्ट से। बिष्ट मतलब बाई मतलब 2, बाई एनुअल, बाई मंथली, है ना, तो 2, सो 2 की जगह एक्चुअली देयर वर 3 डिविजन्स हियर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट धोलावीरा, ठीक है। हमने ऐसे लर्न करा था ना, ढोल के 3 फेसेस होते हैं, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। 1997 में अमरेंद्रनाथ हैड स्टार्टेड एक्सकवेशंस एट राखीगढ़ी, ठीक है, नाम क्या है, अमरेंद्रनाथ, है ना। सो राखीगढ़ी में यू माइट बी रिमेम्बरिंग व्हाट हैड दे हैड फाउंड अ लॉट ऑफ बोन्स, दैट टू ऑफ एनिमल्स, सो एनिमल्स के बोन्स वर बरीड अलोंग विथ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये मिला था राखीगढ़ी पे, है ना, गढ़ी पे, ठीक है। सो इनको कैसे रिमेंबर करेंगे कि पीपल हैड विश्ड दैट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स वुड बिकम अमर, अमर मतलब कि अमर हो जाना, है ना, दे डू नॉट डाई एवर, ठीक है। सो दे लाइक देयर डोमेस्टिक एनिमल्स सो मच दैट दे विश्ड दैट दे बिकेम अमर, तो अमरेंद्रनाथ उनसे हो जाएगा। और एक बार राखी गरी के बारे में विल जस्ट सी वंस अगेन, ये रहा, यहाँ पे क्या हुआ था, एनिमल सैक्रिफाइशियल पिट्स थे, अच्छा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बिकम अमर दे स्टार्टेड सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स, ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर लो इसको, अमर बनने के लिए दे स्टार्टेड सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स, देन राखी गढ़ी उससे लर्न हो जाएगा, है ना, बिकॉज राखी गढ़ी में एनिमल्स वर बीइंग सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है वसंत शिंदे बिगिंस आर्कियोजेनेटिक रिसर्च एट राखी गढ़ी। सो वसंत शिंदे वॉज द पर्सन, इन्होंने देखो अमरेंद्रनाथ had also excavated around Rakhigarhi and archaeogenetic research at Rakhigarhi was being done by Vasant Shinde, and if you might be remembering यहाँ हमने पढ़ा था यहाँ का राखीगढ़ी का skeletal DNA analysis हुआ था and it was found that the DNA of these samples was different from that of Aryan DNA, ठीक है। So this entire thing was done by Vasant Shinde, है ना। How will you remember it? You'll have to link this with DNA, है ना। तो कैसे रिमेंबर करेंगे, देखो वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंत ऋतु में देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू लाइफ विच कम्स इनटू बीइंग, है ना। वसंत इज स्प्रिंग सीजन, है ना, स्प्रिंग में देयर इज न्यू लाइफ, न्यू प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज कम इनटू बीइंग, ठीक है। तो न्यू लाइफ, लाइफ से क्या डीएनए यू कैन लिंक, है ना, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे करके कुछ भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए लर्न। द ईयर्स आर नॉट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए, जैसे लोथल कब हुआ था, 5 years आफ्टर वी बिकेम अ रिपब्लिक, दैट इज़ इन 1955। देन 1960 में काली बंगन, है ना, तो 60 में आप ऐसे इमेजिन करिए कि 2 बैंगल्स हैं, एक 6 वाली शेप का है और एक 0 की शेप का है, ठीक है। 1974 में वी हैड मुगल एमआर मुगल एक्सप्लोरिंग भावलपुर। देन 1980 में 1980 और 86 थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि जर्मन टीम और अमेरिकन टीम हैड कम टू इंडिया, कम इंडिया नहीं, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो वहाँ गए होंगे। और आर एस बिष्ट, बिष्ट हमने बाई करके लर्न करा था, नहीं तो यू कैन लर्न इट दिस वे कि ढोल सुनते हुए कोई बिस्किट्स खा रहा है, बिष्ट से बिस्किट्स, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस। देन 97 में अमरेंद्रनाथ राखीगढ़ी,
और वसंत शिंदे 2013, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन declined from about 1900 BC. There were changes in climate, decline of trade with Mesopotamia, and the drying of the river and water resources due to continuous drought. So these are considered to be some of the reasons why the entire Indus Valley civilization had declined. ठीक है, फिर और कोई थ्योरीज भी है कि कोई इन्वेजन हुआ था, दैट इज़ वाई इट मे हैव डिक्लाइंड, या फ्लड्स आए, शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स हुआ, दैट मे हैव बीन अ रीज़न वाई इट डिक्लाइंड. But in course of time, it was seen that the people had shifted to southern and eastern regions from the Indus region. So इंडस के पास में पहले रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. देन दे शिफ्टेड टूवर्ड्स गंगा एंड ऑल दीज प्लेसेस. सो देन वैदिक पीरियड स्टार्टेड. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ वील जस्ट चेक इफ सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. ऊपर क्वेश्चंस छोड़े थे क्या हमने? These questions are left, so we'll do these first. The famous female figurine known as the dancing girl found at Mohenjo-daro is made of which of the following? So this is a very simple question. The answer will be bronze. Okay. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? So the answer will be Dholavira. है ना, ये रहा धोलावीरा. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? क्या क्या दिया है? चान्होदारो, कोट डीजी, सोगौरा और देसलपुर. सो हमने वी हैव रेड ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट आई थिंक गौरो इज नॉट अ हरप्पन साइट. ठीक है, चान्होदारो, कोट डीजी, देसलपुर हमने पढ़ा है. Now, with reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements are correct? Vedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. ठीक है, this but not this. This is generally, it can be wrong. ठीक है, because Rig Vedic Aryans भी हेलमेट और कोट ऑफ मेल नहीं यूज़ कर रहे थे एज फार एज आई नो. है ना, तो सही है इसमें. अच्छा, ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस आंसर. बट मेरे को लगा था कि वो शायद हेलमेट और कोट ऑफ मेल नहीं यूज़ कर रहे होंगे ऋग्वेदिक आर्यंस, बट दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, देन ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas Indus Valley civilization के people they knew only about copper and iron. This is wrong. We have already seen कि how they were making beads and ornaments out of gold and silver. ठीक है, so this is a wrong statement. Then Rigvedic Aryan had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Again देखो, वैसे तो UPSC had given this statement as correct, but according to me this is wrong. Me क्या, in fact even in the NCERT it is given कि Surkotada में there was remains of horse found. ठीक है, इन द सिटी सेटलमेंट. सो अगर रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज वर फाउंड, दैट मीन्स कि हॉर्स उन्होंने रखा होगा. ठीक है, तो दिस शुड हैव बीन रॉन्ग, बट यूपीएससी हैड मार्क्ड दिस करेक्ट. इनफैक्ट इस स्टेटमेंट में देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स. इवन यहाँ पे जो दिया ना, दे डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम. दिस कैन ऑल्सो बी कंटेस्टेड. ठीक है, बिकॉज कोई भी ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट इज़ जनरली नॉट करेक्ट, बिकॉज ऐसे कहीं पे भी छोटा सा एविडेंस मिल गया कहीं पे, देन दिस स्टेटमेंट विल गो रॉन्ग. ठीक है, सो ये इतना मेरे को दिस क्वेश्चन वाज नॉट, इट वाज अ अबरेशन. ठीक है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, है ना. नेक्स्ट है, विच ऑफ द following characterizes the people of Indus civilization? They possessed great palaces and temples. फिर दिया है कि तो ये ऐसा कुछ तो था नहीं, ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स नहीं थे, है ना. उसके बाद में दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज. हाँ, ये हो सकता है, बिकॉज एक तो मदर गॉडेस का मिला है फिगरीन, देन एक प्रोटो शिवा दैट इज
पशुपतिनाथ उनका भी मिला है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम वर वर्शिप्ड, ठीक है। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। एक तो वॉरफेयर उतना उतना एविडेंस है नहीं उस टाइम पे, है ना। ऑन टॉप ऑफ दैट हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का आई डाउट इट इफ दे वर देयर इज नो एज सच मेंशन ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग दिस, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो आंसर शुड बी टू ओनली, ठीक है। ये हो गया। देन ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये इंडस वैली, एक सेकेंड, इंडस वैली साइट्स देख लेते हैं। वी हैव रेड अबाउट दी साइट्स बट हमने मैप पे नहीं देखे थे, है ना। सो द मैप वाले साइट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो वील जस्ट लुक एट देम वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है एक तो हड़प्पा है, सुखदा जिंदौर है, ये दोनों पढ़ लिया। लोथल भी हमने पढ़ा हुआ है ना। बाकी ये मेसोपोटामियन रीजन का मेंशन है, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। दिस मैप इज इम्पॉर्टेंट। So what all sites did we have? Manda. Manda, you might have been knowing. हमने we had read about this कि it was one of the northernmost sites. रूपनगर के बारे में we have already read. बनावरी के बारे में पढ़ लिया है, कालीबंगन देख लिया है। उसके अलावा क्या क्या देख लिया है? राखी गढ़ी देख लिया है। Then we have read about छानहुदारो, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा है, बालाकोट के बारे में पढ़ा है, लोथल देख लिया है, धोलावीरा देख लिया है, बागासरा देख लिया है, ठीक है। वील लुक एट दी अदर साइड्स एज वेल। उन कौन से बचे हैं? सो वी हैव गंवेरी वाला, ठीक है। रिमेंबर द नेम्स बिकॉज दे मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। गंवेरी वाला है। भिराना, भिराना के बारे में भी वी हैव रेड ऑलरेडी बट स्टिल इट कैन बी मेंशन, ठीक है। भिराना लर्न करना है, फरमाना लर्न करना है ना। देन यू हैव करणपुरा, ठीक है, दाबरकोट, मूसा खेल, लखनजोदारो। लखनजोदारो इज सिमिलर टू मोहनजोदारो, ठीक है। इट इज़ राइमिंग सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। देन खीरसारा, नागेश्वर एंड नागवड़ा। सो नाग वाले दोनों आर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, ठीक है। तो नाग को लर्न कर लेंगे। दोनों नाग वाली साइट्स आर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ये क्या, लखनजोदारो लर्न हो गया। दाबरकोट, दाबरकोट और मूसा खेल, तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। मूसा माउस से लर्न कर सकते हैं इसको, कि वहाँ माउस का खेल देखते थे लोग बैठ के, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टेडियम्स में माउस का खेल देखते थे बैठ के, ठीक है। फिर दाबर कोट, सो दे यूज टू वेयर कोट्स एज वेल, तो दाबर कोट उससे लर्न हो जाएगा, है ना। देन यू हैव गंवेरी वाला, कि वहाँ के लोग प्राइमरीली देवर इलिटरेट, तो गंवेरी वाला गावार से लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर है करणपुरा, करणपुरा है, भिराना है और फरमाना है। फरमाना एंड भिराना आर राइमिंग, ठीक है। तो वैसे लर्न कर लो और ऐसे कर लो कि फरमान जारी करा उन लोगों ने कि इंडस वैली का ये वाला सिटी होना चाहिए। सो दे यूज टू इशू अ लॉट ऑफ फरमान्स। फरमान इज़ नथिंग बट एन ऑफिशियल ऑर्डर, तो ऑफिशियल ऑर्डर काफ़ी पास करते थे। दैट इज़ वाई दे हैड अ वेरी प्लान्ड सिटी, है ना। वेरी वेल फंक्शनिंग प्लान्ड सिटीज़ थे, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस फरमाना। और फरमाना से क्या राइम हो रहा है? बिरहाना, है ना। और करणपुरा इज समथिंग विच यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। करण का पुर, करण मतलब कान में कुछ पहना हुआ, तो ऐसे इमेजिन कर लो कि कान में कोई ज्वेलरी पहनी है, ठीक है। सो बिकॉज ऑर्नामेंट्स वर वेरी फेमस बैक देन, तो कर्ण, कर्ण मतलब कान। सो ईयर में देर इज सम ज्वेलरी विच इज बीइंग वॉर्न, तो वैसे करणपुरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये खीर सारा बचा है। अच्छा, खीर सारा हो गया क्या? नहीं, नाग नाग वाले कर लिए थे, खीर सारा। ऐसे इमेजिन करो कि वो लोग
दे वर डूइंग सम अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन, है ना, ग्रेनरीज प्रेजेंट थे, है ना, तो ग्रेनरीज में क्या राइस वगैरह होगा, राइस से क्या वो लोग खीर बना के खा रहे हैं, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि खीर बहुत सारा खीर बना के खाते थे वो लोग, ठीक है। ये हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।